آج 13 جولائی 2024 اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ دھوپ میں ایک ننا عمران خان کا سپاہی عمر فاروق کھڑا ہے. قیدی نمبر 804 کی کیپ پہنی ہے کہ میری دعا ہے یہ زندگی میں کبھی بھی جیل میں نہ جائے. اور ہماری یہ جدوجہد اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ عمر فاروق بلکہ ہمارے قوم کا ہر بچہ اس کی زندگی ایسی زبردست ہو جائے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، خوشی ہو، امن ہو، سلامتی ہو، اور پاکستان وہ ملک بنے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک فکر اقبال پہ بنایا تھا. مجھے آج یاد آتا ہے 2012 کا وہ جلسہ جب راولپنڈی لیاقت باغ میں جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہم نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا، اور دور سے جب میں سٹیج پہ دیکھ رہا تھا تو پیچھے اقبال کی تصویر، جناح کی تصویر، اور سامنے ان کا عکس سے عمران خان کھڑا تھا. اور سٹیج پہ ترانہ کیا لگا ہوا تھا؟ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، داغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اور ایک یہ آ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا عالم، اور سامنے خان کھڑا تھا. اور میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا خواتین تھیں جس طرح اس وقت نادیہ بی بی اور ہماری ایک بہن، ہماری ورکر، اور سرکاری ریٹائرڈ ملازمین، ریڑھی کے مزدور، بچے، اسٹوڈنٹس. ایک ماحول ایسا تھا جیسے نیا پاکستان بن رہا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان جو اس قوم کو جگانے آیا ہے، کھڑا کرنے آیا ہے، وہ 75 سال سے وہ خونی ہاتھ، وہ پنجے اور وہ دانت جن کو اس قوم کا خون لگا ہے، وہ ہمیں آسانی سے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن یاد رکھیے پاکستانیوں، آسان کام نہیں تھا، یہ آسان کام نہیں تھا. جناح کے پاکستان کو دوبارہ بنانا، تبھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے ایک مشکل شخص کو بھیجا کہ مشکلات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. غلام رسول کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں ویلکم. اور عمران خان صاحب نے ثابت کیا، جس طرح عمران خان صاحب کے ان سپاہیوں نے، نعیم حیدر نے، اور ان جیسے بے شمار کارکنان نے، ہم جیسے ورکرز نے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیل جیسا بھائی کھڑا ہے، کیوں کھڑے ہیں ہم؟ ہمیں کیا چاہیے عمران خان سے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہاتھ سے گیا تو پھر ہماری نسل میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں آئے گا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکے. اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اس لیے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور کل آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے مدد آئی. میں تو آج عدت کیس میں لیٹ ہو گیا اور آج انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا، ہم پر امید ہیں. لیکن بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اندر جو عدت القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے، اور جب خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے تو ہمارا ایک پرانا ساتھی اس کا رنگ مزید زرد ہو جاتا تھا، پرویز خٹک صاحب. بسد احترام خٹک صاحب، کرنے والا کام کوئی نہیں ہے. لیڈر کے نال کھڑا ہونا پائیے، اسٹینڈ لینا چاہیے، وفا نبھانی چاہیے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آج سے 2 سال پہلے کوئی نعیم حیدر کو جانتا تھا؟ آج سے سال پہلے یہ بڑے بڑے وکلاء تھے، سلمان راجہ صاحب کو کوئی اس نظر سے دیکھتا تھا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ینگ لیڈرشپ آئی ہے، عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات سے لیڈرشپ نکلتی ہے، اچھے دنوں میں تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے. دھوپ میں، مشکلات میں، جیلوں کے باہر ہماری جو بہن کھڑی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ عمران خان کی جیلی ہے. اور عمران خان سے محبت ہر وہ آدمی کرتا ہے جو اس سب جلالی پرچم سے محبت کرتا ہے. عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ کیا ہے، اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے عمران خان کو کرکٹ کی دنیا میں اس ملک کا نام بلند کرتے دیکھا. یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بچے اس وقت شاید بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوئیں گے جب عمران خان صاحب پوری دنیا میں سب جلالی پرچم لہرا چکا تھا. بہت سے وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، جو عمران خان صاحب پہ حدیں لگا رہے ہیں، اس کو یہ سزا دو، اس کو وہ پرچہ کرو. آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے تب سے یہ آدمی پاکستان کا
नाम ऊंचा कर रहा है। और हमें नहीं बोलना चाहिए आज, क्योंकि आज इज्जत का फैसला आने वाला है केस का, इसलिए हम थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं। लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम वकालत में मेरे उस्ताद थे अब्दुल्ला जान सानी साहब मर्दान के, और वो कहा करते थे कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आज हमारा दिल थोड़ा सा जज्बाती क्यों है? इसलिए जज्बाती है कि इमरान खान ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जिस जिस शख्स को पाकिस्तान से मोहब्बत किया है, जिस जिस शख्स का दिल कुड़ता था करप्शन पे, जिस जिस शख्स को ये लगता था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जैसा होना चाहिए था, जिसको ये लगता है कि हमसे बाद आजाद होने वाले ममालिक दुनिया में नाम बना गए और हम आज तक भीख मांग रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की मोहब्बत में तहरीक इंसाफ की लड़ी में परोक एक जमात बना दिया इमरान खान, एक कौम बना दिया, एक मुतफरिक, एक ऐसे हालात में जब लीडर जेल में डाल दिया गया, उसको गोलियां मार दी गई। इसके माथे का खून मुझे आज याद है, छोटे भाई का, जिस तरह इसके माथे से खून बह रहा था, मुझे आज भी याद है जिस तरह इनकी आंखों में आंसू थे जब इमरान खान को उठा लिया गया हाई कोर्ट से। मुझे सब याद है जब इमरान खान को उठा लिया गया, गोलियां मार दी गई, जमात तोड़ दी गई। इमरान खान के पुराने साथी नजरिए पे साथ थे। हर इंसान की मजबूरी है, हर इंसान की कमजोरी है। बच्चों पे थ्रेट हो गए, बॉडी पे थ्रेट हो गए, वो बेचारे कुछ छोड़ के चले गए, कुछ मजबूरी में, कुछ लालच में, लेकिन जमात तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, लोगों का अगवा कर दिया गया। आज भी सुनाए कॉलें आ रही है, कोई शर्म कोई हया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भी हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे MNA साहिबान को जो है और MPA साहिबान को थ्रेट किया जा रहा है, जिस पे उमर अयूब साहब ने कल बात भी की है। कितने शर्म की बात है। तो इन हालात में जब ये कौम निकली है और 8 फरवरी को एक इंकलाब बर्पा किया, मैंने आज सुबह इस पे बात की है कि अफसोस की बात है कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक मौका था इस पूरे निजाम के पास अपना जुल्म ठीक करने का, अपने गिरबान में झांकने का। 9 अप्रैल की रात जो आपने शब खून मारा, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी तो वो थी जब बैनुल अक़वामी ईमा पे, बैनुल अक़वामी साजिश पे वो लोग जो अपने वज़ीर आज़म का उन्होंने दस्तो बाजू बनना था, उन्होंने उसकी कमर में, पीठ में छुरा घोंपा। आपका काम था इमरान खान नहीं मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ खड़े होते, अंदर से हिज़्ब इख्तिलाफ लाया दम एतमाद। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से इशारा हो तो यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से कि मैं मुल्क का साबिक सदर रहा हूँ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं इमरान खान को नहीं पसंद करता, मैं उसकी हुकूमत के खिलाफ हूँ, लेकिन अदम एतमाद मैं खुद लाऊंगा। वाशिंगटन की मर्जी पे साइफर के उड़न खटोले पे बैठ के नहीं लाऊंगा। आज साइफर केस कहाँ गया? आज तोशाखाना केस कहाँ गया? आज रिजर्व सीट्स में इंसाफ मिला कि नहीं मिला? अभी थोड़ी देर में इज्जत का भी फैसला आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरा और मेरे भाइयों का, मेरी बहन का, हम साथियों का अडियाला के बाहर कौम के लीडर के बिल्कुल पास इधर जेल के बाहर धूप में खड़े होकर, आपका भी शुक्रिया जो खड़े हैं। मैसेज होप का है, मैसेज उम्मीद का है, मैसेज हौसला न हारने का है, और मैसेज इस बात का भी है कि जब इमरान खान साहब वहां भूख हड़ताल की कॉल दें या एहतजाज की कॉल दें, पीसफुल या पुरअमन जलसों के लिए कॉल दें, फिर हमने कुछ नहीं देखना, फिर हमने निकलना है, खान साहब की कॉल को कामयाब करना है। और मैं इस बात पे पुरुमीद हूं कि उस बड़ी कॉल से पहले लोगों के कुछ होश ठिकाने आ जाएंगे, कुछ समझ उनको वापस आ जाएगी, जो उनके आसान खता हैं, कुछ उनके अक्ल का काम अल्लाह ताला ले लेगा और हमें हमारा मैंडेट वापस मिल जाएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है। लोग कहते थे ना, हम कहते थे नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हम इसी सुप्रीम कोर्ट से बसत एहतराम, हम वो कला, हमारे सियासी कारकुन, हम ये इस्तदा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उम्मत के लीडर इमरान खान साहब की एक पिटीशन आपके पास पड़ी है। यही बेंच जो बैठा था, कल जो बैठा था, यही बैठे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो और ये मालूम किया जाए कि 8 फरवरी की रात मैंडेट पे डाका किसने डाला, क्यों डाला गया, क्यों कमिश्नर रावलपिंडी जैसे लोग वो गोया हुए और वो आज वो कहाँ हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, क्या सिर्फ इलेक्शन करना काफी है या आजाद शफाफ भी होना चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या सिर्फ रिस्क खाना काफी है या रिस्क का तैयब होना जो है वो जरूरी है? क्या सिर्फ रोजी अपने बच्चों को मुंह में डालनी है या उसका हलाल होना भी जरूरी है?
जो इलेक्शन होना सिर्फ काफी नहीं है, उसका आईन और कानून के मुताबिक आजाद और शफाफ होना भी जरूरी है। कौम तो निकली, कौम ने तो इमरान खान को वोट दिया, आपने फॉर्म 47 के जरिए आपने हमला करके कौम के मैंडेट को चुराया। इसलिए दोबारा ये कह रहे हैं, पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन का ऑडिट करे और इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, इस कौम को उसका मैंडेट वापस करे। हमें यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो इसी पार्लियामान में इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी, इमरान खान साहब दोबारा वापस आएंगे और इंशाल्लाह इन गलत और फजूल केसों से उनकी बरियत होगी, बाइज्जत होगी। अभी 3 बजे तक पूरी कौम की नजरें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में हैं कि इज्जत का एक फजूल केस इंशाल्लाह ये खत्म होगा जो इमरान खान पे और उनकी एक पाकबाज खातून, इज्जतदार पर्दादार खातून पर इल्जाम लगाया गया। आज सलमान राजा साहब ने उड़ा के रख दिया हुकूमत के केस को, जब उन्होंने ये बात की कि इसी मानेका साहब ने, मैं फिर भी लफ्ज़ साहब यूज कर रहा हूँ, ये हमारी तरबियत है, हालांकि उसने हमारे लीडर को और उनकी वाइफ, जो हम सब की एक तरह से रूहानी तौर पे माँ का एक रिश्ता होता है, लीडर की वाइफ का, आप उनके साथ आपका एक माँ का रिश्ता होता है, तो हम तो उस रिश्ते को, इज्जत को निभाएंगे। जब मानेका साहब ने ये बात की, आज अदालत में राजा साहब ने जज के सामने ये नुक्ता उठाया, इसी मानेका साहब ने शादी के बाद खान साहब के बारे में ये बात की और बीबी के बारे में कि मेरी साबिका बीवी अपनी वाइफ का जिक्र न किया कि पाकबाज खातून है, नेक खातून है, और इमरान खान साहब के बारे में अच्छे कलमात अदा किए, फिर दुआया कलमात अदा किए। तो फिर नईम हैदर साहब, आप तो वकील हैं, बताएं ना कौम को, फिर क्या हुआ कि शादी के 5 साल बाद जब मानेका साहब अगवा हुए या अरेस्ट हुए, अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अचानक आपको फिर ये केस याद आ गया। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई करप्शन, झूठ या बदनियती की जरासीम डाल दिए गए थे जो शादी के 5 साल बाद आपको याद आया कि ये शादी जो है वो नाजायज है या गलत है? इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, इंसाफ होगा, एक पाकबाज खातून के सर पे इज्जत की चादर रखी जाएगी और इमरान खान साहब इज्जत से बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं नईम साहब को और दोस्तों को दावत देता हूँ कि वो भी कोई इज़हार ख्याल करना चाहते हैं आ जाइए, उसके बाद कोई सवाल होंगे तो उसको ले लेंगे। देखें, अली मोहम्मद खान साहब ने तफसील से बात कर ली है। 2-3 चीज़ें आज की समाज के हवाले से बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस अडयाला जेल के अंदर चल रहा है, तो जैसे बंद कमरे के अंदर पहले सजाएं दी गई, उसी तरह से ये ट्रायल चल रहा है। नंबर 1 बात आ गई। नंबर 2 बात आ गई कि आज आज़म खान ने आकर स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, और आज़म खान ने जो बयान दिया है उसने कहा है कि मैं उस काबीना का हिस्सा नहीं था, उसके अंदर, उस मीटिंग के अंदर मैं नहीं बैठा था, मुझे उस मीटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ। तो उसके इस बयान के बाद जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वो कह रहे थे कि इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी है, तो वो पहली स्टेटमेंट जो अगवा करके उनसे ली गई, तो आज़म खान ने उसके ऊपर बात की है कि वो जो बयान मैंने पहले दिया है, मैं उस बयान की बात नहीं कर रहा, वो साइन मेरे हैं। यानी कि उसने वहाँ पर ये बात तस्लीम की है कि साइन मेरे हैं, लेकिन बयान के ऊपर उसने कोई कमेंट नहीं किया कि बयान उसने अपनी मर्जी से दिया है, बल्कि कोर्ट को उसने कहा है कि जो बयान अभी मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ यही मेरा असल बयान है। ठीक है जी। तो अब जो गवाह लाए गए थे, उठाकर लाए गए थे, तो वो आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हक है, और ये ऐसे ही पर्दा जो है इन झूठे लोगों का वो उठेगा और इसी तरह से हकायक सामने आएंगे, इसी तरह से सच सामने आएगा। कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, उससे बयान लिया गया जो उसने पहले धांधली के हवाले से दिया था कि 70-70 हज़ार से पीटीआई के लोग जीते हुए थे। इसी तरह से अनवार काकड़ की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वो भी मान चुका है कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। ये जो गवाह लाए जा रहे हैं इन केसेस के अंदर, आज वो भी आकर ये एडमिट चीज़ कर रहे हैं कि उनको उठाकर वहाँ से बयान जो दिया गया था उनका किसी जगह के ऊपर भी वो जबर के ऊपर था, असल बयान वही है जो आज आज़म खान ने कोर्ट के अंदर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने अभी तक गवाहान इस केस के अंदर पेश हो चुके हैं, एक बंदे ने भी इमरान खान या बीबी साहबा के ऊपर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट का, कोई फाइनेंशियल कि उन्होंने कोई फ़ायदा लिया है, कोई माली फ़ायदे का कोई बयान नहीं दिया, और ना ही वो बयान इस तरह का कोई उसके ऊपर कोई क्रॉस हुआ। कोई बंदा स्टेटमेंट ये नहीं दे रहा कि इमरान खान ने या बीबी साहबा ने कोई करप्शन किया है या फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। तो फिर केस किस चीज़ का चल रहा है? एक अलकादर ट्रस्ट बना जो कि एक इस्लामी नज़रिए को देखते हुए इमरान खान ने बनाया, और उसमें कोई इमरान खान ना मालिक है ना बीबी साहबा मालिक है, वो ट्रस्टी हैं। पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में,
जो हुकूमत को चले गए। तो इस तरह से ये केस चल रहे हैं। मेरा आपको बताने का यही मकसद था। और परवेज़ खटक, इमरान खान ने उसको देखा तक नहीं है। बार बार वो जैसे वो बिल्ली देखती है ना, चोरी चोरी नज़रों से, वो देख रहे थे, लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा भी गवारा नहीं किया कि उसकी तरफ देखें। और आज उन लोगों की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। आम लोग वहाँ से उनके खिलाफ लड़े हैं और भारी लीड से, जो कहते थे कि इमरान खान हमारा मुकाबला करे, उन्होंने उनको हराया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आज इज्जत केस का फैसला हमारे हक में, हम हक में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इंसाफ के ऊपर आया, मेरिट के ऊपर आया, इंसाफ दिया जाएगा जैसे कल दिया गया है। 3 बजे फैसला है, जो भी फिर आपके सामने आएगा। लेकिन हम किसी भी गैर कानूनी गिरफ्तारी को नहीं मानते। झूठे केसेस सारे बनाए गए। किसी न किसी केस के अंदर खान साहब को पहले जैसे गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कोई टीम बुलाई हुई है कोई गिरफ्तारी डालने के लिए, तो हम एडवांस में ये कहते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं। और हम ऐसे किसी उनके कंडक्ट को नहीं मानते। और अगर ऐसा कोई काम किया गया तो हम उसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक अहमद खान, सदर ILF पाकिस्तान। आपने कल का फैसला देखा और हमारी परसों की रैली भी मीडिया ने जिस तरह से वहाँ पे हमें कवर किया, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट की वापसी का रास्ता शुरू हो चुका है। और आज मेरी खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने इस बात को दोबारा एम्फसाइज किया है कि तमाम पाकिस्तानी अवाम के लिए जो PTI के लीडरशिप, जो PTI के वकला जंग लड़ रहे हैं, ये सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मैंडेट वापस मिलेगा। दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने कही कि जिस तरह से सर्वेलेंस की जा रही है वो पूरी कौम उसको रिजेक्ट करती है। और हमने बतौर पटिशनर 7 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTA और फेडरेशन के खिलाफ पिटीशन कल फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर किसी भी एजेंसी को किसी भी सूरत में किसी पाकिस्तानी के फ़ोन टेप करने की इजाज़त नहीं है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। ये काजी फायद ईसा जो आज ये सुन रहा है और इसको देख के बर्दाश्त कर रहा है, इसके अपने केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हर्ड कर चुकी है कि ये सर्वेलेंस नहीं हो सकती। तीसरी बात उन्होंने कही है कि भूख हड़ताल ज़रूर करूँगा। किसके खिलाफ करूँगा? वो इन मुक्तदर लोगों के खिलाफ जो फार्म 47 की पैदावार हैं और जो सर्वेलेंस इस वक्त अडियाला में चल रही है। जिस तरह से यहाँ पे डिप्टी सुपरडेंट का तबादला किया जा रहा है, आज तो बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि एक बिल्ली भी मेरे करीब आती है तो मुझे लगता है कि वो बिल्ली भी यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये अल्फाज थे उनके अपने। तीसरी बात उन्होंने कही है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI के जीते हुए फॉर्म 45 के लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह इस असेंबली में आएंगे और कोई ऐसा फैसला जो काजी फायद ईसा खुद हमारे किसी केस में बैठ के करता है, हम उसको इस तरह से रिजेक्ट करते हैं कि उनकी बीवी की स्टेटमेंट एक ऑडियो चल चुकी है। जब कोई किसी के खिलाफ पर्सनल बायसनेस होती है तो उसके ऊपर उस जज को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। काजी फायद ईसा से कल भी कहा था कि आज भी वक्त है अपने गुनाह धो लें, वरना जस्टिस मुनीर से बुरे लफ्ज़ों में आपका नाम तारीख याद करेगी। मैं आज मीडिया की वसातत से फिर ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद मनश जजेस 6 जजेस के लेटर के बाद पूरी ताकत के साथ इस वक्त खड़े हैं और आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बगैर किसी दबाव के
आज इद्दत केस में भी फैसला सुनाया जाएगा और ये पूरी हमारी 51% खवातीन जो हैं उनकी तकद्दुस की बात है, उनकी तकरीम की बात है, कुरान की आयत की बात है, अहादीस की बात है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह के भोंडे केस के अंदर किसी सूरत में भी हमारे लीडर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को कोई सजा दे सकता है। ये केस फारिग हो चुका है। हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाले केस के अंदर भी दयानतदारी से आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज इद्दत का केस का फैसला अनाउंस होना है 3 बजे। ये 3 बजे इस कौम की माँओं, बहनों, बेटियों का फैसला किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान के साथ साथ बुशरा इमरान की हिफाजत करती थी, करती हूँ और उन्हें उसी तकद्दुस के साथ, हिफाजत के साथ और एक वफा शुआर जो ज़ौजा है इमरान खान की, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक न था, न है और न होगा, उनको यहाँ से इस अडयाला जेल से वापस बनी गाला ले जाना, नाजिया खटक, हमारी तमाम खवातीन, हमारी तमाम PTI और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक लॉ, आइन और कानून के ज़रिए ना हम डरते थे, ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। ना कानून तोड़ा था, ना कानून तोड़ते हैं, ना कानून तोड़ेंगे। लेकिन जैसे उस कमरे अदालत में कल कहा जा रहा था कि PTI थी, PTI है, PTI रहेगी, इसी तरह इमरान खान, बुशरा इमरान थे, बुशरा इमरान खान है और बुशरा इमरान खान रहेंगे। ये सबको, और इंशाल्लाह मुझे सबको उम्मीद है, मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाल्लाह आज फैसला हमारे हक में होगा और हम इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे।